Hello, welcome back once again in basic electronics subject. So in our last lecture, we have started the unit number 5 of this subject, that is regulators and power supply. And in that lecture, we have seen first what is a regulated power supply. What do you mean by regulated power supply? The regulated power supply is nothing but in spite of changes in the input and output, your output must remain constant at a desired level. That is nothing but regulated power supply. So the output voltage must be constant in spite of changes which will be occur at the input side or at the load side, but your output must be constant within a desired limit, within a desired range. So that is known as what? Regulated power supply. So we have seen our last lecture. This is a simple block diagram of DC power supply. So first we have seen your main AC input supply is down converted with the help of transformer, step down transformer, which will convert your main 230 volt into a desirable low value. For example, 12 volt, 9 volt, 15 volt. It is dependent upon the transformer turns ratio. After the down conversion, you are using rectifier in order to convert your AC supply into a pulsating DC. So this pulsating DC is containing a ripples. So this ripples is going to be removed with the help of filter circuit. It is going to smooth your waveform. Now with the help of regulator, your smoothed waveform will be remains in a constant form. In spite of changes which will be occur at the input or at the load side, your output is going to be constant within a desired range, within a desired limit with the help of regulator. So that thing we have seen. So in this way you are getting a pure constant DC output at the output of regulator section, and this is applied to the load section. Also in our last lecture we have seen the concept of line regulation and load regulation. So line regulation is a concept of changes which are occur at the input side, line side. So that must be regulate at the output. So this is the factor which is denoting the line regulation. It is the ratio of change in output with the help of change in input by keeping the load resistance constant. Similarly, load regulation is a term which is related with to changes which will be going to occur at the output load current. So because of changes which will occur at the output load current, and that change which is going to cause your change in the output voltage by keeping the input line voltage constant. So this is known as load regulation. We have seen the formula of load regulation. VNL minus VFL upon VFL means output voltage at no load minus output voltage at full load divided by output voltage at full load. So this is a regulation which is maintaining with the help of changes which is occur at the load side. Okay, now today we are continuing the last lecture only, unit number 5. Moving ahead, now we have to see in this lecture some more circuits of regulator. So we are going to see some more circuits which are related with a regulator. So the first thing is going to be used as Zener-Diodes as voltage regulator. If you remember, we have already understood the concept of Zener-Diode in our first chapter only. The concept of Zener-Diode is that Zener-Diode is a special purpose using diode which is used in the reverse bias mode. Because of it is heavily doped, so that's why this particular diode is used in a reverse bias mode in order to provide a constant output in spite of increase in the supply voltage. If you are going to increase in the supply voltage, your output voltage across the Zener diode, it is going to be constant. Only the change is going to be occur in the current supply. The current through the Zener diode is going to be increased rapidly, and the output across the Zener diode will remain constant in spite of increasing the reverse supply voltage. So this is the behavior which we have already understood in our first chapter of Zener diode. Now that concept only we are going to use in this chapter, Zener diode as a voltage regulator. So how we are using the Zener diode in order to maintain our output voltage constant means as a regulator. So this is a circuit which is explaining to you
how this Zener diode is used as a voltage regulator. The output across the Zener diode remains constant. That output voltage is nothing but provided to the load resistance RL. If you are going to change at the input side, the uncertain, unregulated output changes occur at the input side will provide a constant output at the load side because of Zener diode. Why? Because the voltage across the Zener diode remain constant in spite of you are increasing the change in the input, and but the voltage across the Zener diode will remain constant. The thing is that the changes which is going to be occur is to the Zener current. The Zener current, the current flowing through the Zener diode, it is going to increase, but the voltage will remain constant. So that is the concept of Zener diode is used in this voltage regulator part, voltage regulator circuit. तो यहाँ पे भी आपको नजर आ रहा होगा, लिखा हुआ दिख रहा होगा कि क्या कॉन्सेप्ट है Zener diode का वोल्टेज रेगुलेटर में यूज होने के लिए। तो यहाँ पे वही सेंटेंस में आपको लिखा हुआ नजर आएगा, द Zener diode regulator is based on a particular characteristic of Zener diode। तो जो Zener diode वोल्टेज रेगुलेटर है ये किसके बेस पे बना हुआ है, इसके Zener diode की कैरेक्टरिस्टिक के बेस के हिसाब से ही बनाया हुआ है। When the Zener diode is operated in the breakdown or Zener region, जैसा कि आपको पता है जब Zener diode आपका breakdown region में ऑपरेट किया जाता है तो वोल्टेज अक्रॉस इट इज सब्सटेंशियली कांस्टेंट। तो Zener diode के अक्रॉस में जो वोल्टेज है, Zener diode के अक्रॉस में जो वोल्टेज है, वोल्टेज अक्रॉस द Zener diode विल रिमेन कांस्टेंट, वो कांस्टेंट रहेगा फॉर अ लार्ज वैल्यू ऑफ चेंज ऑफ करंट थ्रू इट। किसके लिए, कौन सी चीज के लिए, क्या चीज बढ़ेगी, उसके थ्रू जो करंट फ्लो हो रहा है वो रैपिडली इंक्रीज होगा, बट द वोल्टेज अक्रॉस इट इज गोइंग टू बी रिमेन कांस्टेंट फॉर एनी इंक्रीज इन सप्लाई वोल्टेज। तो जैसा आप रिवर्स सप्लाई वोल्टेज बढ़ाओगे तो एक लिमिट के बाद में आपके Zener diode के सामने का वोल्टेज ब्रेकडाउन रीजन के बाद, ब्रेकडाउन रीजन के पॉइंट के बाद आपका Zener diode के सामने जो वोल्टेज है वो कांस्टेंट हो जाता है। अब बाकी आप जो भी चेंजेस अप्लाई करोगे सप्लाई वोल्टेज में, वो चेंज किसके फॉर्म में नजर आएगा, वो आपको चेंज इंक्रीज इन करंट के फॉर्म में नजर आएगा। तो करंट थ्रू द Zener diode वो बढ़ता रहेगा, लेकिन वोल्टेज जो है वो क्या रहेगा, वो कांस्टेंट रहेगा। एंड इट इज दिस कैरेक्टरिस्टिक ऑफ Zener diode दैट परमिट्स इट टू बी यूज एज अ वोल्टेज रेगुलेटर। और Zener diode की यही कैरेक्टरिस्टिक हमको परमिट करती है Zener diode के किसके जैसा यूज करने के लिए, एज अ वोल्टेज रेगुलेटर के जैसा यूज करने के लिए। जैसा कि आपको नजर आ रहा है, एज लॉन्ग एज इनपुट वोल्टेज V इज ग्रेटर देन द Zener वोल्टेज VZ। तो जब आपका इनपुट वोल्टेज, ये जो सप्लाई का जो इनपुट वोल्टेज है, रिवर्स सप्लाई आप देख रहे होगे यहाँ पे Zener diode भी जो यूज हो रहा है, ऑपरेट हो रहा है, वो किस मोड में ऑपरेट हो रहा है, रिवर्स बायस मोड में ही ऑपरेट हो रहा है। ये पॉजिटिव सप्लाई आप कहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हो, कैथोड को, नेगेटिव सप्लाई कहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं, एनोड को। तो ये जो बाइजिंग अप्लाई हो रही है ये Zener diode को कौन से मोड में अप्लाई हो रही है, रिवर्स बायस मोड में अप्लाई हो रही है। ये आपका RS क्या है, सीरीज रजिस्टर, या RL क्या आपका लोड रजिस्टर। तो जो करंट फ्लो हो रहा है लोड रजिस्टर पे उसको बोलते हैं IL लोड करंट, और जो करंट सप्लाई का जो जा रहा है, सप्लाई का जो करंट फ्लो हो रहा है, टोटल सर्किट का जो करंट फ्लो हो रहा है वो I है। तो I इज डिवाइडेड इनटू टू करंट्स IZ एंड IL। I इज इक्वल्स टू IZ प्लस IL। तो टोटल सप्लाई करंट ऑफ द सर्किट वो है आपका डिवाइड हो रहा है किसमें किसमें, IZ और IL में। IZ क्या है आपके Zener diode के थ्रू जो करंट फ्लो हो रहा है वो IZ है, Zener करंट। IL के आपका लोड के पास जो करंट फ्लो हो रहा है उसको लोड करंट बोलते हैं। और ये आपका RS जो है वो सीरीज रजिस्टर है, जो सप्लाई से आपका कनेक्टेड है, सीरीज रजिस्टर। तो ये सीरीज रजिस्टर का जॉब क्या रहता है, टू लिमिट द करंट फ्लो थ्रू द Zener diode। तो Zener diode के पास जो करंट फ्लो हो रहा है उसको लिमिट करने के लिए यहाँ पे हम क्या यूज करते हैं, RS का यूज करते हैं, करंट लिमिटिंग रजिस्टर है ये RS। तो क्या है अभी इसमें ऑपरेशन, जरा आपको क्लियर करता हूँ मैं यहाँ पे। तो जब आपका इनपुट वोल्टेज ग्रेटर होगा Zener वोल्टेज से, अगर ये Zener वोल्टेज की जो भी रेटिंग की वोल्टेज होगी वो वोल्टेज को कांस्टेंट रखेगा। लेकिन अगर उसके ऊपर का आप इनपुट सप्लाई वोल्टेज प्रोवाइड कर रहे हो तो क्या होगा, द Zener ऑपरेट्स इन द ब्रेकडाउन रीजन एंड मेंटेन कांस्टेंट आउटपुट वोल्टेज अक्रॉस द लोड। तो जब ब्रेकडाउन रीजन में ऑपरेट करेगा Zener diode तो जाहिर सी बात है वोल्टेज तो कांस्टेंट रखेगा। और यही वोल्टेज जो है Zener diode का वो किसके पैरेलल में अपीयर हो रहा है, लोड रेजिस्टेंस के पैरेलल में। यानी वॉट एवर द वोल्टेज अक्रॉस द Zener diode that is going to be only available at the load voltage, at the load side. So output voltage is nothing but the Zener voltage. Output voltage is nothing but the voltage which is going to be appear across this Zener diode. तो the series resistor RS limits the input current। तो ये जो आपको RS जो नजर आ रहा है वो क्या पर्पस के लिए यूज हो रहा है,
इन ऑर्डर टू लिमिट द इनपुट करंट। तो इनपुट करंट जो फ्लो हो रहा है उस इनपुट करंट को लिमिट करने के लिए आप क्या यूज कर रहे हो, सीरीज रजिस्टर का यूज कर रहे हो। अब यहाँ पे आपको ना दो चीज में क्लियर होगा, कब आउटपुट वोल्टेज बढ़ता है तो क्या होगा, अगर इनपुट वोल्टेज कम होता है तो क्या होगा। तो Zener will maintain constant output voltage across the load in spite of changes in the load current or input voltage. As the load current increases, the Zener current decreases so that the current through resistance RS is constant. तो जैसा कि आपका लोड करंट इंक्रीज होगा तो Zener डायोड के अक्रॉस में जो करंट फ्लो हो रहा है वो क्या होगा, डिक्रीज होगा, इन ऑर्डर टू मेंटेन द कांस्टेंट करंट फ्लोइंग थ्रू दिस सीरीज रजिस्टर RS। तो अगर कोई भी रीजन की वजह से, कोई भी फैक्टर की वजह से लोड करंट के पास अगर करंट इंक्रीज होता है, लोड के थ्रू अगर जो करंट इंक्रीज होता है तो उसका कंपेंसेट कौन करेगा, Zener डायोड के पास जो करंट फ्लो हो रहा है वो कंपेंसेट करेगा, उसके पास उसके थ्रू जो करंट है वो क्या होगा, कम होगा, in order to maintain the constant current flowing through this series resistor RS। तो इसके बाद यहाँ पे आपको नजर आएगा क्या पॉइंट दिया हुआ है, सेकंड पॉइंट, एज आउटपुट वोल्टेज वी इन माइनस आई आर एस। तो क्या मतलब हुआ, ये आउटपुट वोल्टेज जो है वो टोटल आउटपुट वोल्टेज वो क्या है, इनपुट वोल्टेज माइनस आई आर एस। माइनस आई आर एस का मतलब क्या होता है, ये जो आउटपुट वोल्टेज है वो आउटपुट वोल्टेज क्या है, टोटल सप्लाई वोल्टेज, इनपुट वोल्टेज कितना दिया जा रहा है, माइनस वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस दिस सीरीज रजिस्टर आर एस। तो वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस दिस सीरीज रजिस्टर आरएस को डिनोट किससे किया हम लोग ने, करंट फ्लोइंग थ्रू दिस रजिस्टर आरएस क्या हो रहा है, आई, और ये रजिस्टर आरएस। तो V इक्वल्स टू क्या होता है, आई आर। तो ये वोल्टेज ड्रॉप जो इधर पे है वो क्या होगा आपका, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस दिस रजिस्टर आरएस इज आई आर एस। तो टोटल आउटपुट वोल्टेज V आउट इज इक्वल्स टू V इन माइनस आई आर एस। तो ये कंपनसेशन होगा आपका इधर पे, ये कंपनसेट इस तरीके से करेगा यहाँ पे। and I is constant, therefore output voltage remains unchanged। तो I constant है, सीरीज रजिस्टर constant है, तो आपका इसलिए क्या होगा, आउटपुट वोल्टेज will remain constant। the reverse will be true condition the load current decreases। और ये सेम चीज आपकी रिवर्स किसके लिए अप्लाई होगी, कौन सी चीज के लिए, कौन सी सिनेरियो के लिए, अगर लोड करंट डिक्रीज होता है। तो ये जो पहला पैराग्राफ है आपको वो किस सिनेरियो को समझाया गया है, पहला पैराग्राफ आपको ये सिनेरियो को समझाया गया कि अगर लोड करंट बढ़ता है या डिक्रीज होता है तो क्या एक्सपेक्ट हो गया, क्या सिनेरियो होगा। तो लोड करंट अगर आपका बढ़ेगा तो उसका कंपेंसेट Zener डायोड के अक्रॉस में जो करंट फ्लो हो रहा है वो कम होगा। और क्यों कम होगा, क्योंकि आपका ये आई कांस्टेंट होना चाहिए। अगर आई कांस्टेंट होगा तो वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस दिस रजिस्टर आरएस विल रिमेन कांस्टेंट। दैट्स व्हाई आउटपुट वोल्टेज क्या होगा, कांस्टेंट होगा, क्योंकि वी आउट इज इक्वल टू क्या, वी इन माइनस आई आर एस। इसी तरीके से अगर ये कम होगा तो आईजेड बढ़ेगा, आईजेड बढ़ेगा तो ये कांस्टेंट ही रहेगा फिर। तो दैट्स व्हाई आउटपुट वोल्टेज विल रिमेन कांस्टेंट। तो अभी जो फर्स्ट पैराग्राफ का जो सिनेरियो था वो आपको समझाया गया कि अगर लोड करंट इंक्रीज और डिक्रीज होता है तो कैसे आपका आउटपुट वोल्टेज कांस्टेंट होगा। बिकॉज आउटपुट वोल्टेज आपका कांस्टेंट क्यों रहने वाला है, क्योंकि उसका कंपेंसेशन ये Zener डायोड के अक्रॉस में जो करंट फ्लो हो रहा है वो लेगा अपने आप में। अगर यहाँ पे बढ़ता है तो ये कम करेगा, ये घटेगा तो ये बढ़ाएगा। क्यों, क्योंकि आपका आई कांस्टेंट रहना चाहिए, और अगर आई कांस्टेंट रहेगा तो वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस दिस आरएस कांस्टेंट रहेगा, आउटपुट वोल्टेज कांस्टेंट रहेगा। तो ये पहला पैराग्राफ आपका ये था। सेकंड पैराग्राफ में आपको दिया हुआ है द सर्किट विल आल्सो करेक्ट फॉर द चेंजेस इन इनपुट वोल्टेज। और इसी तरीके से अगर आपका इनपुट वोल्टेज साइड में अगर चेंजेस अगर होता है तो उसके लिए भी करेक्ट करेगा। शुड द इनपुट वोल्टेज वी इन इंक्रीज, मोर करंट विल फ्लो थ्रू द Zener। तो अगर आपका इनपुट वोल्टेज कम होता है तो मोर करंट विल फ्लो थ्रू द Zener के पास से मोर करंट फ्लो होगा इन ऑर्डर टू मेंटेन द कांस्टेंट आउटपुट वोल्टेज। तो किसी भी रीजन की वजह से अगर इनपुट वोल्टेज कम हो जाता है, घट जाता है, तो Zener डायोड के अक्रॉस में जो वोल्टेज है वो क्या रहेगा, कांस्टेंट ही मेंटेन रहेगा। किसके जरिए, किसके थ्रू, Zener डायोड के, Zener करंट के थ्रू। Zener करंट बढ़ेगा तो आपका क्या होगा, इधर पे आउटपुट वोल्टेज विल रिमेन कांस्टेंट। और ये आपको इधर पे Zener डायोड के सामने जो वोल्टेज है वही आपको आउटपुट वोल्टेज के सामने वोल्टेज मिल रहा है। तो V आउट इज नथिंग बट द वोल्टेज विच इज मेजरिंग अक्रॉस द Zener डायोड। तो अगर ये कांस्टेंट हो रहा है तो इसके लिए आपका आउटपुट वोल्टेज भी क्या होगा, कांस्टेंट ही मिलेगा। मोर करंट विल फ्लो थ्रू द Zener, द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस आरएस। अब यहाँ पे नेक्स्ट सिनेरियो दिया हुआ है, अगर इनपुट वोल्टेज बढ़ता है तो क्या होगा, मोर करंट विल फ्लो थ्रू द Zener, ज्यादा करंट फ्लो होगा, एंड द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस आरएस विल इंक्रीज बट लोड वोल्टेज विल रिमेन कांस्टेंट। द रिवर्स विल बी ट्रू शुड द इनपुट वोल्टेज डिक्रीजेस। तो सिंपल सिनेरियो में आपको मैं ये समझाना चाहता हूँ, सिंपल सिनेरियो में अगर ये है
कि जेनर डायोड की रेटिंग के हिसाब से उसका वोल्टेज कांस्टेंट होता है। तो मान के चलो कुछ भी रीजन की वजह से अगर इनपुट वोल्टेज बढ़ जाता है तो ये इनपुट वोल्टेज बढ़ेगा तो क्या होगा, इनपुट वोल्टेज बढ़ेगा तो क्या होगा, जेनर डायोड के सामने तो वोल्टेज कांस्टेंट होने वाला है, जेनर डायोड के सामने का वोल्टेज तो कांस्टेंट होने वाला है, तो जो ज्यादा इनपुट वोल्टेज बढ़ रहा है वो किधर कंपेंसेट हो रहा है, वेयर इट इज कंपेंसेटिंग, सो इट इज कंपेंसेटिंग द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस दिस सीरीज रजिस्टर आरएस। तो अगर फॉर एग्जांपल मान के चलो आपका जेनर डायोड का वोल्टेज रेटिंग 5 वोल्ट का था, यानी 5 वोल्ट का था मतलब आउटपुट वोल्टेज हमेशा 5 वोल्ट ही रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। और अगर गलती से आप इनपुट सप्लाई वोल्टेज 6 वोल्ट दे रहे हो, तो 6 वोल्ट दे रहे हो तो आपको 6 वोल्ट दे रहे हो तो आउटपुट वोल्टेज में तो 5 वोल्ट ही मिलेगा। क्यों? क्योंकि जेनर डायोड के सामने का वोल्टेज कितना रेटिंग का है, 5 वोल्ट का है, तो जो रेटिंग का ये जेनर डायोड का है वही आउटपुट में मिलने वाला है आपको, वी आउट में वही मिलने वाला है, 5 वोल्ट ही मिलेगा। whatever the output voltage across this Zener diode, that much voltage is going to be only appear at the output V out। तो बाकी का जो बढ़ा हुआ वोल्टेज उसका क्या, तो वो जो वोल्टेज है जो आपका बड़ा है फॉर एग्जांपल 6 वोल्ट हो रहा है, तो वो जो 1 वोल्ट जो एक्स्ट्रा है वो कहां पे दिखेगा आपको, द वोल्टेज इट इज गोइंग टू बी ड्रॉप अक्रॉस दिस सीरीज रजिस्टर आरएस। तो वो जो 1 वोल्टेज जो आपकी बात चल रही है जो एक्स्ट्रा जो इनपुट सप्लाई वोल्टेज का है वो कहां पे ड्रॉप खाएगा, वो कहां पे खाएगा, द सीरीज रजिस्टर आरएस के पास खाएगा। तो ये लास्ट सेंटेंस में आपको यही समझाया गया है, यही बात बताया गया है कि अगर कोई भी रीजन की वजह से इनपुट वोल्टेज बढ़ता है तो मोर करंट विल फ्लो थ्रू द जेनर, द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द सीरीज रजिस्टर आरएस इंक्रीजेस। तो सीरीज रजिस्टर के आरएस में जो वोल्टेज ड्रॉप है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा इन ऑर्डर टू मेंटेन द आउटपुट वोल्टेज कांस्टेंट। तो आउटपुट वोल्टेज कांस्टेंट मेंटेन करने के लिए आपका वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस सीरीज रजिस्टर आरएस बढ़ जाएगा। अगर ये 6 वोल्ट है तो 1 वोल्ट इधर 5 वोल्ट इधर, अगर ये 5 वोल्ट का रेटिंग है उसी तरीके से कंपेंसेट होता रहेगा। अगर 7 कर दोगे 7 वोल्ट दोगे तो 7 वोल्ट देने पे भी आपका आउटपुट वोल्टेज 5 वोल्ट ही रहेगा, क्योंकि जेनर डायोड के सामने तो आउटपुट वोल्टेज कांस्टेंट ही रहता है। तो बढ़ेगा तो क्या बढ़ेगा, करंट बढ़ेगा, उसके थ्रू जो करंट फ्लो हो रहा है वो बढ़ेगा। वो बढ़ रहा है मतलब क्या, यही सप्लाई के थ्रू जो करंट आ रहा है वही तो बढ़ रहा है इधर पे भी। तो सीरीज रजिस्टर आरएस के सामने वोल्टेज ड्रॉप क्या होगा, बढ़ जाएगा। यानी अगर फॉर एग्जांपल 7 वोल्ट दे रहे हो इनपुट में तो 5 वोल्ट इधर कांस्टेंट है, तो 2 वोल्ट इधर पे ड्रॉप खा रहा है, 2 वोल्ट आपका सीरीज रजिस्टर आरएस पे ड्रॉप खाए। इज दैट क्लियर, समझ में आ गया आप लोग को? तो इन दिस वे दिस जेनर डायोड विल एक्ट एज अ वोल्टेज रेगुलेटर, योर आउटपुट वोल्टेज विल रिमेन कांस्टेंट इन स्पाइट ऑफ एनी इंक्रीज और डिक्रीज इन इनपुट साइड। ठीक है, तो इनपुट साइड में अगर आपका इंक्रीज और डिक्रीज होता है तो आपका आउटपुट वोल्टेज क्या होगा, कांस्टेंट होगा। उसका कंपेंसेशन यहाँ पे किसके थ्रू किया जा रहा है, सीरीज रजिस्टर आरएस के थ्रू किया जा रहा है। तो आई होप आप लोग को ये जेनर डायोड एज अ वोल्टेज रेगुलेटर समझ में आ रहा होगा। किसी को कुछ पूछना है, कुछ डाउट है तो पूछ सकता है वो। एनीवन इज हैविंग एनी डाउट, एनीथिंग, एनी क्वेश्चन? समझ में आ रहा है आप लोग को जेनर डायोड एज अ वोल्टेज रेगुलेटर? यस सर। Drawback of Zener diode voltage regulator, it has low efficiency for heavy load current। तो Zener diode का जो ड्रॉबैक है वो कुछ ड्रॉबैक्स है जिसके लिए हम लोग को आगे चल के दूसरी सर्किट्स पे जाना पड़ता है। इट इज हैविंग वेरी लो एफिशिएंसी फॉर हैवी लोड करंट। तो ये स्मॉल लोड करंट के लिए तो अच्छा है, वोल्टेज को कांस्टेंट रखता है, लेकिन जब ज़्यादा हैवी लोड करंट की बात होती है तो वहाँ पे इसकी इतनी एफिशिएंसी अच्छी नहीं होती, इतना अच्छा रेगुलेशन नहीं कर पाता है। It is because if the load current is large, there will be considerable power loss in the series limiting resistor। तो ये इसका रीजन यहाँ पे मेंशन कर रहा है कि इसकी एफिशिएंसी कम है। अगर आपका लोड करंट कोई रेंज से ज़्यादा बढ़ जाता है, कुछ हैवी लोड करंट के लिए हो जाता है, तो ज़्यादा पावर लॉस होगा। क्यों ज़्यादा पावर लॉस होगा? बिकॉज ऑफ सीरीज लिमिटिंग रेजिस्टेंस। तो सीरीज लिमिटिंग रेजिस्टेंस के पास आपका ज़्यादा वोल्टेज ड्रॉप होगा, तो उस हिसाब से यहाँ पे पावर का लॉस ज़्यादा होता है, कंसिडरेबली पावर लॉस बहुत ज़्यादा होता है। तो ये जो है आपका जेनर डायोड एज वोल्टेज रेगुलेटर, ये लार्ज लोड करंट के लिए नहीं यूज होता है। इट इज सुटेबल ओनली फॉर लो लोड करंट। लो लोड करंट के लिए सुटेबल है, लार्ज लोड करंट के लिए ज़्यादा पावर लॉस होता है बिकॉज ऑफ सीरीज लिमिटिंग रेजिस्टेंस आरएस। दूसरा, द आउटपुट वोल्टेज स्लाइटली चेंजेस ड्यू टू जेनर इम्पिडेंस। और दूसरी बात यहाँ पे ये समझाया गया है कि हम लोग बोल रहे हैं कि आउटपुट वोल्टेज हमेशा कांस्टेंट रहेगा, बट यहाँ पे वो बता रहा है कि बिकॉज ऑफ जेनर इम्पिडेंस की वजह से आउटपुट वोल्टेज स्लाइटली चेंजेस भी होता रहेगा। क्योंकि टोटल आउटपुट का इम्पिडेंस यहाँ पे बताया, टोटल आउटपुट वोल्टेज बताया गया, टोटल आउटपुट वोल्टेज का एक्सप्रेशन। तो टोटल आउटपुट वोल्टेज हम लोग क्या मान रहे हैं,
हम लोग टोटल आउटपुट वोल्टेज तो सीधा सीधा यही बोल रहे हैं ना, द वोल्टेज विच इज अक्रॉस दिस जेनर डायोड वीजेड। तो ये तो बात सही है, वीजेड एंड ऑल्सो बिकॉज ऑफ इम्पिडेंस, इम्पिडेंस की वजह से भी आउटपुट वोल्टेज में फैक्टर बढ़ता है, वही एक्सप्रेशन आपको यहाँ पे नजर आएगा। आई जेड जेड जेड, आई जेड 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 का मतलब क्या, आई जेड 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 का मतलब ये जो आई जेड है ये जेनर करंट का है, और ये जो जेड और जेड जो नजर आ रहा है इम्पिडेंस ऑफ जेनर डायोड। इम्पिडेंस को हम लोग डिनोट करते हैं किससे, जेड से, और ये किसका इम्पिडेंस है, जेनर डायोड का। तो आप अगर इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन भी करोगे तो आपको वोल्टेज फैक्टर नजर आएगा ही ना, आई जेड इंटू जेड जेड। वी इजिकल्स टू क्या होता है, आई इंटू आर। समझ में आया, इम्पिडेंस इज नथिंग बट क्या, रेजिस्टेंस। तो यहाँ पर रेजिस्टेंस को किसके थ्रू रिप्रेजेंट किया गया, इम्पिडेंस के थ्रू रिप्रेजेंट किया गया। तो टोटल आउटपुट वोल्टेज जो है वो टोटल आउटपुट वोल्टेज ये सर्किट का वोल्टेज अक्रॉस जेनर डायोड तो है ही, प्लस साथ में ये रोल भी प्ले होता है, आई जेड 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 यानी इम्पिडेंस का भी रोल प्ले होता है। What is the impedance of Zener diode? Resistance of Zener diode, internal resistance of Zener diode। तो जो इंटरनल रेजिस्टेंस जेनर डायोड का है वो भी आपका फैक्टर बनता है वोल्टेज आउटपुट पे पिक्चर में आने में। तो बिकॉज ऑफ दिस इम्पिडेंस आपका आउटपुट वोल्टेज क्या होगा, चेंज होगा। तो ये एक्सप्रेशन में मैं जो लेके आया हूँ, तो ये एक्सप्रेशन में ये क्लियर हो रहा है कि जो आउटपुट वोल्टेज ये है सर्किट का, इट इज ऑल्सो डिपेंडेंट अपॉन द जेनर डायोड इम्पिडेंस। तो चेंजेस इज लोड करंट प्रोड्यूसेस चेंजेस इन जेनर करंट। तो आउटपुट का लोड करंट चेंज होगा तो क्या चेंज होगा, जेनर करंट चेंज होगा, और जेनर करंट चेंज होगा तो ये फैक्टर चेंज होगा, और इसकी वजह से आउटपुट वोल्टेज चेंज होगा। बात समझ में आ रही है। लोड करंट चेंज होगा तो क्या चेंज होने वाला है, जेनर करंट चेंज होगा, और जेनर करंट चेंज होगा तो ये इंपेडेंस फैक्टर के मल्टीप्लीकेशन के हिसाब से ये फैक्टर चेंज होगा, और ये फैक्टर जब चेंज होगा तो क्या चीज चेंज होगी, आउटपुट वोल्टेज चेंज होगा। तो इसके लिए यहाँ पे वही रीजन लिखा हुआ है, द आउटपुट वोल्टेज स्लाइटली चेंजेस ड्यू टू जेनर इम्पिडेंस। तो जेनर इम्पिडेंस की वजह से भी, ये जेनर डायोड के इंटरनल इम्पिडेंस की वजह से भी क्या होगा, आउटपुट वोल्टेज स्लाइटली चेंज होगा। इसलिए ये सर्किट ज़्यादा हैवी लोड करंट के लिए प्रिफरेबल नहीं है। बस समझ में, consequently the output voltage also changes, therefore the use of this circuit is limited to only such application where variation in load current and input voltage are small। तो ये सर्किट का इस्तेमाल वहाँ पे ही किया जाता है जहाँ पे आपके पास वेरिएशन नाम की जो चीज़ है ना वो कम होती है, लोड करंट बोलो या इनपुट वोल्टेज बोलो, जहाँ पे वेरिएशन लिमिटेड रेंज में होता है, तो वहाँ पे हम लोग ये पर्टिकुलर वोल्टेज रेगुलेटर को यूज़ करते हैं, जेनर डायोड एज वोल्टेज रेगुलेटर को। तो ये एक्सप्रेशन से आपको क्लियर हो रहा है कि जेनर इम्पिडेंस भी आपका पिक्चर में आता है आउटपुट वोल्टेज को चेंज करने में। तो ज़्यादा चेंजेस वगैरह होंगे, लोड करंट में चेंजेस ज़्यादा होंगे, तो जाहिर सी बात है ये फैक्टर चेंज होगा तो आउटपुट वोल्टेज आपका चेंज होगा। तो जो चीज़ के लिए हम लोग यूज़ करना चाहते हैं कॉन्स्टेंट के लिए, वो कॉन्स्टेंट वाली बात नहीं रह पाएगी। तो इसलिए स्मॉल वेरिएशन के लिए या स्मॉल वैल्यू ऑफ वोल्टेजेस चेंज के लिए ये सर्किट को प्रीफर करते हैं। इट इज़ नॉट प्रिफरेबल फॉर हैवी लोड करंट और हैवी वेरिएशन। That's why we are moving towards next type of circuit। फिर इसलिए आपको next type of circuit नजर आएगी, that is transistor series voltage regulator। अब आपको सेकेंड रेगुलेटर सर्किट जो नजर आएगी वो आपको नजर आ रही है ट्रांजिस्टर सीरीज वोल्टेज रेगुलेटर। तो दो टाइप की सर्किट अभी और पढ़ना है हम लोग को, एक ट्रांजिस्टर सीरीज वोल्टेज रेगुलेटर और इसी के बाद एक है ट्रांजिस्टर शंट वोल्टेज रेगुलेटर। तो सीरीज रेगुलेटर किस लिए बोलते हैं, शंट रेगुलेटर किस लिए बोलते हैं, वो अभी आपको क्लियर होगा। सबसे पहली बात, ये सर्किट में आपके दो कंपोनेंट्स यूज होते हैं, ट्रांजिस्टर यूज होता है और जेनर डायोड यूज होता है। दैट्स वाई इसका नाम क्या लिया हुआ है, ट्रांजिस्टर। इसलिए ये सर्किट में क्या यूज होता है, ट्रांजिस्टर यूज होता है, बीजेटी यूज होता है। दैट्स वाई द नेम इज ऑल्सो रिलेटेड विद ट्रांजिस्टर। तो ये सर्किट का नाम क्या है, ट्रांजिस्टर सीरीज वोल्टेज रेगुलेटर। इसको सीरीज क्यों बोलते हैं ये भी क्लियर कर देता हूँ, बिकॉज ये जो ट्रांजिस्टर आपका जो यूज हुआ है ये रेगुलेटर सर्किट में, ये सीरीज में किसके, लोड के साथ है। तो लोड रेजिस्टेंस आरएल के साथ में ये ट्रांजिस्टर सीरीज में है। दैट्स व्हाई द नेम ऑफ दिस सर्किट इज ट्रांजिस्टर सीरीज वोल्टेज रेगुलेटर। तो ट्रांजिस्टर सीरीज वोल्टेज रेगुलेटर इस सीरीज को, इस सर्किट को इसलिए कहते हैं क्योंकि जो ट्रांजिस्टर यूज हुआ है ये रेगुलेटर सर्किट में, ये सीरीज में है किसके, लोड रेजिस्टेंस आरएल के। अब जरा ध्यान से देखो ये सर्किट में है क्या। ये सर्किट में आपका जो ये एनपीएन टाइप का ट्रांजिस्टर है, एनपीएन टाइप के ट्रांजिस्टर में ये जो टर्मिनल है वो बेस है। ये टर्मिनल जहाँ पे एरो मार्क है वो कौन सा टर्मिनल होता है, जहाँ जो टर्मिनल में एरो मार्क होता है वो कौन सा टर्मिनल होता है, प्लीज टेल मी। ये टर्मिनल कौन सा है ट्रांजिस्टर का, ये बेस है। ये कौन सा टर्मिनल है, इमीटर। वेरी गुड। तो ये टर्मिनल आपका इमीटर है, ये टर्मिनल आपका कलेक्टर है, ठीक है।
तो आप जो इनपुट जो प्रोवाइड कर रहे हो वो इनपुट आप कौन से टर्मिनल को अप्लाई कर रहे हो, बात समझ में आ रही है? आप इनपुट जो है यहाँ से प्लस और माइनस ये इनपुट वोल्टेज ये सीरीज करंट लिमिटिंग सीरीज रजिस्टर के थ्रू कौन से टर्मिनल में अप्लाई कर रहे हो? यू आर अप्लाइंग इनपुट टू विच टर्मिनल? यहाँ से आपको नजर आ रहा है इनपुट वोल्टेज, ये आपका करंट लिमिटिंग रेजिस्टेंस सीरीज रेजिस्टेंस कहाँ पे अप्लाई कर रहे हो इनपुट? कलेक्टर। हाँ, तो यही चीज आपको समझना है। यू आर नॉट अप्लाइंग इनपुट टू कलेक्टर टर्मिनल, यू आर अप्लाइंग इनपुट टू बेस टर्मिनल। प्लीज पे अटेंशन, प्लीज पे अटेंशन। आप जो इनपुट जो अप्लाई कर रहे हो वो कहाँ पे अप्लाई कर रहे हो? जरा ध्यान से सर्किट के जरा कनेक्शन ध्यान से देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ट्रांजिस्टर सीरीज रेगुलेटर सर्किट इज ऑपरेटेड इन विच मोड? कॉमन कलेक्टर, कॉमन बेस, कॉमन इमीटर। ये चीज आपको बहुत अच्छी तरीके से क्लियर होना चाहिए। अभी आपको देख के ऐसा नजर आ रहा है कि ये कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन है, बट ये कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन नहीं है। मैं अभी आपको क्लियर करता हूँ। तो आप जो इनपुट अप्लाई कर रहे हो, ये इनपुट जो आप अप्लाई कर रहे हो ऐसा लग रहा है हम कलेक्टर टर्मिनल पे अप्लाई कर रहे हैं, बट इट इज नॉट अप्लाइंग टू कलेक्टर टर्मिनल, इट इज अप्लाइंग टू बेस टर्मिनल थ्रू दिस सीरीज रजिस्टर RS। तो थ्रू दिस सीरीज रजिस्टर RS, इसलिए तो सीरीज रजिस्टर RS ऐसा प्लेस किया हुआ है। अगर आपको सीधा कलेक्टर टर्मिनल में अप्लाई करना होता तो सीधा सीधा आप यहाँ पे रखते ना सीरीज रजिस्टर RS और यहाँ पे ही खत्म करते कलेक्टर टर्मिनल में। तो ये जो सीरीज रजिस्टर RS का कनेक्शन इस तरीके से मार्क करके जो आपको दिखा रहा है बेस टर्मिनल पे लेके जा रहा है, तो ये जो इनपुट है वो आप अप्लाई कर रहे हो कौन से टर्मिनल पे? यू आर अप्लाइंग द इनपुट टू बेस टर्मिनल एंड टेकिंग द आउटपुट एट इमीटर टर्मिनल। तो इट इज विच कॉन्फ़िगरेशन? कौन सा कॉन्फ़िगरेशन हुआ ट्रांजिस्टर का? इनपुट अप्लाई कर रहे हो बेस, आउटपुट अप्लाई कर रहे हो इमीटर, तो कौन सा टर्मिनल कॉमन हो गया? फिर जो टर्मिनल नहीं यूज हो रहा है वो आपका कॉमन टर्मिनल हुआ। मीन्स दिस ट्रांजिस्टर इज ऑपरेटिंग इन कॉमन कलेक्टर मोड। कौन से मोड में काम कर रहा है ये? कॉमन कलेक्टर मोड। कॉमन कलेक्टर मोड क्यों? क्योंकि इनपुट आप अप्लाई कर रहे हो बेस में, आउटपुट आप ले रहे हो इमीटर से, तो कौन सा टर्मिनल फिर कॉमन बना? जाहिर सी बात है, जो इनपुट में नहीं यूज हो रहा है ना आउटपुट में यूज हो रहा है, तो वो टर्मिनल आपका कॉमन बना, दैट इज कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन। तो कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन का ये है। मेरे को चलो वो बात, ये आपको एक्स्ट्रा नॉलेज देने का था, थोड़ा एक्स्ट्रा माइंड में क्लियर करना था, खाली आपको ये क्लियर कराना था कि यहाँ पे इनपुट आप अप्लाई कहाँ पे करो? बेस टर्मिनल में। और यही बेस टर्मिनल में इनपुट के साथ में आप क्या अप्लाई कर रहे हो, क्या चीज जोड़ रहे हो? यू आर एडिंग जेनर डायोड, यू आर एडिंग जेनर डायोड। तो जेनर डायोड का जो वोल्टेज है वो भी आपको यहाँ पे समझ में आ रहा है। अब आपको ये सर्किट में ये अंडरस्टैंड करना है व्हाट इज द टोटल आउटपुट वोल्टेज। व्हाट इज द टोटल आउटपुट वोल्टेज? टोटल आउटपुट वोल्टेज जो है वो आपका यहाँ पे डिफरेंस है। आपको कैसा डिफरेंस नजर आएगा? पूरा की पूरा वोल्टेज आपका क्या रहेगा? जेनर डायोड का वोल्टेज रहेगा, द वोल्टेज अक्रॉस दिस जेनर डायोड माइनस आप क्या करोगे? बेस टू इमीटर वोल्टेज, माइनस बेस टू इमीटर वोल्टेज। अगर आप ये सर्किट में किरचॉफ वोल्टेज लॉ अप्लाई करो आउटपुट साइड में, तो जाहिर सी बात है ये तो आपको पता ही है, ये क्या है? इधर नेगेटिव है, ये ऊपर क्या है? इधर पे पॉजिटिव है। पॉजिटिव नेगेटिव, रिवर्स सप्लाई वोल्टेज अप्लाई करते हो ना इधर पे, ये पॉजिटिव नेगेटिव। और बेस टू इमीटर का क्या कनेक्शन है? बेस टू इमीटर कनेक्शन यहाँ पे क्या रहेगा? ये सेक्शन आपका क्या रहेगा? प्लस, ये सेक्शन क्या रहेगा आपका? माइनस। तो आप किरचॉफ वोल्टेज जो अप्लाई करोगे तो वी आउट माइनस वी जेड माइनस वी बी ई इक्वल टू जीरो, वी आउट माइनस वी जेड माइनस वी बी ई इक्वल टू जीरो। तो अगर आप एक्सप्रेशन लोगे आउटपुट वोल्टेज का, तो आउटपुट वोल्टेज का एक्सप्रेशन आपको क्या नजर आएगा? क्या मिलेगा आपको? वी आउट इज इक्वल टू सॉरी वी आउट माइनस वी जेड माइनस वी बी ई। तो आपका टोटल आउटपुट एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा? अगर आप इस तरीके से देखोगे, उस तरफ अगर सर्किट की तरफ घुमाओगे, तो आपका आउटपुट वोल्टेज का एक्सप्रेशन क्या मिलेगा? वी जेड माइनस वी बी ई, वी जेड माइनस वी बी ई। ऐसा लग रहा है कि हम लोग ये दोनों का एडिशन करके वी जेड प्लस वी बी ई, लेकिन आपका आउटपुट वोल्टेज क्या हो जाएगा? वी आउट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? वी जेड माइनस वी बी ई। पहले हम लोग ये सेंटेंस को पढ़ लेते हैं, एक्सप्रेशन को पढ़ लेते हैं, तो शायद मैं आपको क्लियर कर पाऊँ। ऐसा आपको थोड़ा मैं क्लियर नहीं कर पा रहा हूँ। This voltage regulator circuit design is shown below. The following circuit can build with a transistor as well as a Zener diode. तो ये जो सर्किट जो है वो बिल्ड होती है किसके थ्रू? ट्रांजिस्टर एज वेल एज किसके साथ में? जेनर डायोड के साथ में। In this circuit, the load current flow through the series resistance through the Q1 series transistor. तो ये सर्किट में जो करंट फ्लो होता है वो किसके थ्रू फ्लो होता है? थ्रू दिस सीरीज ट्रांजिस्टर Q1 के थ्रू फ्लो होता है। सो दिस इज द रीजन, ये रीजन की वजह से
ये रेगुलेटर सर्किट को हम लोग क्या कहते हैं, ट्रांजिस्टर सीरीज वोल्टेज रेगुलेटर। तो एक रीजन मैंने आपको ये बताया था कि क्योंकि ये ट्रांजिस्टर जो है वो सीरीज है विद द लोड रेजिस्टेंस RL, दैट्स व्हाई इस सर्किट को क्या कहते हैं, ट्रांजिस्टर सीरीज वोल्टेज रेगुलेटर। अब यहाँ पे बात चली देखो, व्हेन द अनरेगुलेटेड डीसी सप्लाई इज गिवन टू द इनपुट टर्मिनल ऑफ द सर्किट, देन वी गेट द रेगुलेटेड आउटपुट वोल्टेज अक्रॉस द लोड। हियर जेनर डायोड प्रोवाइड द रेफरेंस वोल्टेज। तो यहाँ पे जो रेफरेंस वोल्टेज जो प्रोवाइड कर रहा है वो कौन प्रोवाइड कर रहा है, वही जेनर डायोड ही प्रोवाइड कर रहा है। अगर इनपुट का अनरेगुलेटेड सप्लाई वोल्टेज प्रोवाइड कर रहे हो तो आउटपुट में आपको वोल्टेज जो मिल रहा है वो रेगुलेटेड मिल रहा है बिकॉज ऑफ द रेफरेंस वोल्टेज जेनर डायोड। तो जेनर डायोड विल एक्ट एज अ रेफरेंस डायोड। ऑपरेशन अब यहाँ पे हम लोग को अंडरस्टैंड करना है, वही सिनेरियो जब आउटपुट वोल्टेज इंक्रीज होता है या आउटपुट वोल्टेज डिक्रीज होता है तो कैसे आपका आउटपुट वोल्टेज कांस्टेंट होगा। द ऑपरेशन ऑफ दिस ट्रांजिस्टर कैन बी डन इन टू केसेस लाइक व्हेन द आउटपुट वोल्टेज इंक्रीज एंड डिक्रीज। तो जब आपका आउटपुट वोल्टेज बढ़ेगा, जब आउटपुट वोल्टेज आपका घटेगा तो कैसा होगा इसमें, व्हेन द आउटपुट वोल्टेज डिक्रीजेस, जब आपका आउटपुट वोल्टेज डिक्रीज होता है, व्हेन द आउटपुट वोल्टेज डिक्रीजेस इन द सर्किट, द बेस टू इमीटर वोल्टेज विल बी इंक्रीज and causes the transistor to perform more. As a result, the output voltage will be maintained at a stable level. अब ये कैसे आपको क्लियर होगा, मैं आपको कैसे क्लियर कराऊं ये। अगर आपका आउटपुट वोल्टेज डिक्रीज होता है तो यहाँ पे क्या बताया गया है, बेस टू इमीटर वोल्टेज विल इंक्रीज एंड कॉज द ट्रांजिस्टर टू परफॉर्म मोर। ये कॉज करेगा ट्रांजिस्टर को परफॉर्म मोर करने के लिए। इस तरीके से आपका आउटपुट वोल्टेज क्या हो जाएगा, मेंटेन हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा एट ए स्टेबल लेवल। कैसे ये चीज हुई आपको ये अभी क्लियर नहीं हो पा रही है, बिकॉज मैं आपको वही बता रहा हूँ, ये सर्किट में आउटपुट वोल्टेज का जो एक्सप्रेशन है वी आउट इज इक्वल टू क्या है, वी जेड माइनस वीबीई, वी जेड माइनस वीबीई। क्योंकि मैं एक्सप्रेशन आपको बता रहा था, वी आउट इज इक्वल टू क्या, यहाँ पे माइनस वी जेड होगा, ये प्लस वीबी होगा। तो अगर आप इसका एक्सप्रेशन अच्छी तरीके से लिखोगे तो एक्सप्रेशन आपको जो मिलेगा, वी आउट इज इक्वल टू क्या है, वी जेड माइनस वीबीई। तो आउटपुट वोल्टेज का एक्सप्रेशन क्या है, जेनर डायोड वोल्टेज माइनस वीबी। तो जेनर का वोल्टेज हमेशा कांस्टेंट रहेगा, वो तो बढ़ेगा घटेगा नहीं। द वोल्टेज अक्रॉस दिस जेनर डायोड विल रिमेन कांस्टेंट। तो अगर कोई भी रीजन की वजह से, कोई भी फैक्टर की वजह से अगर आउटपुट वोल्टेज डिक्रीज और इंक्रीज होता है तो कौन सी चीज उसके हिसाब से कंपेंसेट होगी, बढ़ेगी घटेगी, तो बेस टू इमीटर वोल्टेज बढ़ेगा घटेगा। और जब इनपुट का बेस टू इमीटर वोल्टेज बढ़ेगा या घटेगा तो अकॉर्डिंगली उसका आउटपुट वोल्टेज क्या होगा, इंक्रीज और डिक्रीज होगा। तो पहला सिनेरियो यहाँ पे ये समझाया जा रहा है आप लोगों को, पहला सिनेरियो में जब आपका आउटपुट वोल्टेज डिक्रीज होता है तो आउटपुट वोल्टेज डिक्रीज होगा तो उसको कंपेंसेट करने के लिए कौन सी चीज इंक्रीज होगी, बेस टू इमीटर वोल्टेज इंक्रीज होगा। और बेस टू इमीटर वोल्टेज इंक्रीज होगा तो जाहिर सी बात है आउटपुट विल एम्पलीफाई मोर, क्योंकि वो ट्रांजिस्टर है, जितना इनपुट में मिलेगा उतना आउटपुट में वो करेगा। अगर इनपुट बढ़ेगा तो आउटपुट भी बढ़ेगा। तो अगर कोई भी फैक्टर रीजन की वजह से अगर आपका आउटपुट वोल्टेज ये सर्किट का बढ़ जाता है तो बढ़ जाएगा, तो अगर घटता है, पहला सिनेरियो यहाँ पे डिक्रीज बोला है, डिक्रीज, अगर कोई भी रीजन की वजह से आउटपुट वोल्टेज डिक्रीज होता है तो कौन सी चीज इंक्रीज होगी, बेस टू इमीटर वोल्टेज इंक्रीज होगा। और बेस टू इमीटर वोल्टेज इंक्रीज होगा तो ट्रांजिस्टर विल एम्पलीफाई मोर, क्योंकि इनपुट बढ़ा तो आउटपुट भी बढ़ेगा और इस तरीके से वो आउटपुट फिर कंपेंसेट हो जाएगा। तो जो अमाउंट में डिक्रीज हुआ था वो अमाउंट में कंपेंसेट हो गया, ट्रांजिस्टर ने उतना ज्यादा एम्पलीफाई कर दिया। क्यों, क्योंकि वीजेड तो कांस्टेंट है। तो अगर ये कम हुआ तो क्या बढ़ेगा, वीबीई बढ़ेगा। दूसरा सिनेरियो देखो, व्हेन द आउटपुट वोल्टेज इंक्रीज, अगर आउटपुट वोल्टेज बढ़ता है, व्हेन द आउटपुट वोल्टेज इंक्रीजेस इन द सर्किट देन द बेस टू इमीटर वोल्टेज विल बी डिक्रीज। तो फिर क्या चीज कम हो जाएगी, ऑटोमेटिकली बेस टू इमीटर वोल्टेज कम हो जाएगा एंड कॉजेज द ट्रांजिस्टर टू परफॉर्म लेस। और ये क्या कॉज करेगा, ट्रांजिस्टर को लेस परफॉर्म करेगा, ट्रांजिस्टर विल परफॉर्म लेस, तो आउटपुट वोल्टेज ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। तो अगर कोई भी रीजन की वजह से आउटपुट वोल्टेज बढ़ गया था तो उसका कंपेंसेशन कौन करेगा, वीबी करेगा, वीबी कम हो जाएगा और वीबी कम होगा तो आउटपुट भी कम हो जाएगा। तो इस तरीके से जो बड़ी हुई चीज थी वो कंपेंसेट हो गई, आउटपुट में कम हो गई। तो ये सर्किट में आपको एक ही चीज ध्यान में रखना है, क्या चीज ध्यान में रखना है, ये सर्किट में जो आउटपुट वोल्टेज है उसका एक्सप्रेशन क्या है, वी आउट इज इक्वल टू वी जेड माइनस वीबी। आपका ऐसा लग रहा है कि सर ये तो दोनों का प्लस हो के आउटपुट वोल्टेज आ रहा है, नहीं। अगर आप इधर पे आउटपुट वोल्टेज में किरचॉफ वोल्टेज लॉ अप्लाई करोगे तो आपको समझ में आएगा, क्योंकि ये रिवर्स में यूज होता है जेनर डायोड। जेनर डायोड इज यूज्ड इन रिवर्स बायस मोड। क्या मतलब होता है रिवर्स बायस मोड में, रिवर्स बायस मोड में क्या होता है, मतलब ये नेगेटिव ये पॉजिटिव है और बेस टू इमीटर वोल्टेज में ये पॉजिटिव ये नेगेटिव है। तो अगर आप किरचॉफ वोल्टेज लॉ अप्लाई करोगे तो वी आउट इज इक्वल टू माइनस वी जेड प्लस वी बी। तो अगर आप उसको उस तरफ घुमा लो, उस तरफ अरेंज कर लो तो आपको क्या मिलेगा एक्सप्रेशन,
माइनस वीजेड का क्या हो जाएगा, प्लस वीजेड हो जाएगा, प्लस वीबी का क्या हो जाएगा, माइनस वीबी हो जाएगा। तो आपका आउटपुट वोल्टेज का एक्सप्रेशन क्या हुआ, वी आउट इज इक्वल टू क्या हुआ, वी आउट इज इक्वल टू वीजेड माइनस वीबीई। तो आउटपुट वोल्टेज के हिसाब से कौन सी चीज कम और घटेगी, कम होगी बढ़ेगी, तो वो बेस टू इमीटर वोल्टेज ही कम होगा बढ़ेगा, क्योंकि जेनर डायोड के सामने का वोल्टेज तो कांस्टेंट है हमेशा, इट विल रिमेन ऑलवेज कांस्टेंट। तो अगर ये आउटपुट वोल्टेज बढ़ रहा है या घट रहा है तो उसकी हिसाब से कौन सी चीज बढ़ेगी घटेगी, बेस टू इमीटर। ये बढ़ा तो ये बेस टू इमीटर कम होगा, ये कम हुआ तो बेस टू इमीटर वोल्टेज बढ़ेगा। तो वो हिसाब से आउटपुट वोल्टेज आपका क्या हो गया, कंपेंसेट हो गया। तो आउटपुट वोल्टेज हमेशा आपका कांस्टेंट होगा। कोई भी रीजन की वजह से आपका अगर आउटपुट वोल्टेज इंक्रीज और डिक्रीज होता है तो उसका कंपेंसेशन किसकी वजह से किया जाएगा, बेस टू इमीटर वोल्टेज की वजह से किया जाएगा। बेस टू इमीटर वोल्टेज ऑटोमेटिकली इंक्रीज और डिक्रीज होगा और इस तरीके से आपका ट्रांजिस्टर लेस और ज्यादा एम्पलीफाई करेगा। समझ में आया आप लोग को, क्लियर है क्या बोल रहा हूं मैं यहाँ पे, ये सर्किट का ट्रांजिस्टर सीरीज रेगुलेटर का क्या समझाया मैंने, समझ में आया आप लोग को। ट्रांजिस्टर सीरीज वोल्टेज रेगुलेटर पार्ट में आउटपुट वोल्टेज कैसे कांस्टेंट मेंटेन होगा वो क्लियर हुआ, क्योंकि इसका एक्सप्रेशन वी आउट इज इक्वल टू क्या है, वी जेड माइनस वीबीई। तो वी जेड माइनस वीबीई में मतलब ये होता है अगर वी आउट बढ़ा तो वीबीई कम होगा, और अगर वी आउट कम हुआ तो वीबीई बढ़ेगा। तो वो अकॉर्डिंगली वो हिसाब से आपका आउटपुट हमेशा कंपेंसेट होके कांस्टेंट मेंटेन रहेगा। Advantages, what are the advantages of transistor series voltage regulator? The advantage of this circuit is that the changes in Zener current are reduced by factor beta. Hence the effect of Zener impedance is tremendously reduced and we get a more stabilized output. तो जो शिकायत, जो ड्रॉबैक अपने को Zener diode as voltage regulator में थी, जो Zener impedance की वजह से आउटपुट वोल्टेज स्लाइटली चेंज हो रहा था, तो यहाँ पे वो चीज आपको दूर होते हुए नजर आएगी। ये सर्किट का एडवांटेज ये है कि जो जेनर करंट जो है वो रिड्यूस हो रहा है, कौन से फैक्टर के हिसाब से, बीटा के फैक्टर के हिसाब से। तो जेनर करंट का जो फैक्टर था, जो करंट फ्लोइंग थ्रू दिस जेनर डायोड, उस चीज को अब कंपेंसेट करने वाली चीज कौन सी आ गई है, ट्रांजिस्टर आ गया है, क्योंकि ट्रांजिस्टर के थ्रू जो करंट फ्लो हो रहा है वो पिक्चर में आ रहा है। पहले जेनर डायोड एज वोल्टेज रेगुलेटर में होल एंड सोल जो करंट फ्लो हो रहा था वो कौन सा फ्लो हो रहा था, जेनर डायोड के पास जो करंट फ्लो हो रहा है वही फ्लो हो रहा है। अब आपने क्या किए, इस जेनर डायोड के साथ में क्या चीज को जोड़ दिए, ट्रांजिस्टर को जोड़ दिए। तो वॉट एवर द करंट इज फ्लोइंग थ्रू दिस जेनर डायोड, अब वो जो पिक्चर में आ रहा है वो कौन पिक्चर में आ रहा है, ट्रांजिस्टर में आ रहा है। तो ट्रांजिस्टर पिक्चर में आ रहा है तो ट्रांजिस्टर मेन रोल बन रहा है, इट इज द कॉज, इट इज द रीजन, ये रीजन बन रहा है द करंट फ्लोइंग थ्रू दिस जेनर डायोड। तो जो सिर्फ आपका जेनर करंट बढ़ रहा था, घट रहा था, उसकी वजह से वो वोल्टेज ड्रॉप वहां पे खा रहा था, तो अब यहाँ पे वो चीज को फैक्टर कौन दूर कर रहा है, या आपका ट्रांजिस्टर दूर कर रहा है। अब यहाँ पे ट्रांजिस्टर के पास, ट्रांजिस्टर के थ्रू जो करंट फ्लो हो रहा है वो हिसाब से आपके जेनर डायोड के पास में करंट फ्लो हो रहा है। तो ट्रांजिस्टर को लगाने की वजह से द करंट विच इज फ्लोइंग थ्रू दिस ट्रांजिस्टर, दैट इज ओनली द करंट विच इज फ्लोइंग थ्रू दिस जेनर डायोड। तो ये पहला पॉइंट आपको यहाँ पे वही समझाया गया है। Hence the effect of Zener impedance is tremendously reduced and we get a more stabilized output. Disadvantage क्या है? Despite the fact that changes in Zener current are reduced to a considerable extent, the output voltage is not absolutely constant. तो यहाँ पे भी output जो है not absolutely constant. This is happen because both VB and VZ decreases with increase in room temperature. तो यहाँ पे ये cause बन गया है कि जो बेस टू इमीटर वोल्टेज और जो जेनर वोल्टेज है वो डिक्रीज होता है विद द इंक्रीज इन रूम टेम्परेचर। तो टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर बढ़ने की वजह से क्या होगा, आपका वोल्टेज वीबी और वोल्टेज ऑफ द जेनर डायोड क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो ये फैक्टर होने की वजह से आपका आउटपुट वोल्टेज स्टिल नॉट एब्सोल्युटली कांस्टेंट। तो एक चीज दूर किया तो एक चीज का शिकार हो गया। एक चीज यहाँ पे दूर किया कि इंपेडेंस का जो प्रॉब्लम था जेनर डायोड वोल्टेज रेगुलेटर में वो स्टेबलाइज हुआ। तो दूसरी चीज यहाँ पे जो प्रॉब्लम में आ गई यह आ गई कि इसका जो आउटपुट वोल्टेज का एक्सप्रेशन है VZ माइनस VBE, ये चेंजेस हो सकता है बिकॉज ऑफ चेंज इन रूम टेम्परेचर। तो रूम टेम्परेचर बढ़ने की वजह से ये दोनों वैल्यू घटेगी, तो ऑब्वियसली आपका आउटपुट वोल्टेज क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इट इज नॉट ईजी टू चेंज द आउटपुट वोल्टेज एज नो सच मीन्स इज प्रोवाइडेड। तो आउटपुट वोल्टेज को इजीली चेंज करना मुश्किल है क्योंकि इसमें कोई अलग से कोई मोड या मीन्स प्रोवाइड नहीं किया गया है। सिंपल सा आउटपुट एक्सप्रेशन दिया गया है, वी आउट इज इक्वल टू VZ माइनस VBE। तो दिस इज द सेकंड टाइप ऑफ सर्किट जो था ट्रांजिस्टर सीरीज। द लास्ट सर्किट
इट इज ट्रांजिस्टर शंट रेगुलेटर सर्किट। नाउ ट्रांजिस्टर शंट रेगुलेटर सर्किट में आपको यहाँ पे भी पिक्चर क्लियर हो रही होगी कि यहाँ पे क्या है, जो आपका ट्रांजिस्टर यूज हुआ है रेगुलेटर सर्किट में वो पैरेलल में किसके साथ में, लोड रेजिस्टेंस के साथ में। तो दिस ट्रांजिस्टर इज इन पैरेलल विद द लोड। तो ये सर्किट का नाम क्या है, ट्रांजिस्टर शंट वोल्टेज रेगुलेटर। तो ट्रांजिस्टर शंट वोल्टेज रेगुलेटर रेगुलेट वोल्टेज बाय शंटिंग करंट अवे फ्रॉम द लोड टू रेगुलेट द आउटपुट वोल्टेज। तो क्या होगा अभी यहाँ पे ट्रांजिस्टर को शंट में यूज करने की वजह से, तो करंट का पाथ सेपरेशन हो गया, यानी अब लोड के पास जो करंट फ्लो हो रहा है वो IL है, और जो ट्रांजिस्टर के पास से जो करंट फ्लो हो रहा है, कलेक्टर टर्मिनल से जो करंट फ्लो हो रहा है वो IC है। तो इस तरीके से यहाँ पे अब कंपेंसेशन किया जा रहा है दो अलग अलग करंट डाइवर्जेंस से। अब दोनों के पाथ अलग अलग हो गए ना, यहाँ पे लोड के पास जो करंट फ्लो हो रहा है वो IL हो गया, और जो ट्रांजिस्टर के पास से जो करंट फ्लो हो रहा है वो आपका क्या हो गया, IC हो गया। तो यहाँ पे जो रेगुलेशन होता है वो किस वजह से होता है, बाय लिमिटिंग द करंट फ्लोइंग थ्रू दिस ट्रांजिस्टर IC। तो कलेक्टर करंट जो अमाउंट में करंट फ्लो हो रहा है वो हिसाब से आपका कंपेंसेशन रेगुलेशन हो रहा है लोड के पास। द सर्किट ऑफ शंट रेगुलेटर इज शोन इन द फिगर। तो यहाँ पे आपको सर्किट पूरी नजर आ रही है। ये सर्किट में भी सेम चीज है, आप इनपुट कहाँ पे अप्लाई कर रहे हो, बेस को अप्लाई कर रहे हो। ये जो दिख रहा है सीरीज रजिस्टर RS, फिर ये जेनर डायोड आपका रिवर्स बायस मोड में यूज हुआ है, और ये आपके पिक्चर में आ रहा है बेस को इनपुट प्रोवाइड करने में। तो इनपुट जो है वो आपका पहुंच रहा है कहाँ पे, बेस टर्मिनल पे, और आउटपुट जो आप ले रहे हो वो कहाँ पे ले रहे हो, कलेक्टर पे ही। तो ये भी कौन सा कॉन्फ़िगरेशन हो गया, आप ये कौन सा कॉन्फ़िगरेशन हो गया, प्लीज टेल मी। आप इनपुट प्रोवाइड कर रहे हो बेस पे और आउटपुट ले रहे हो कलेक्टर पे, तो कौन सा कॉन्फ़िगरेशन हो गया, कॉमन इमीटर। तो ये कौन सा कॉन्फ़िगरेशन हो गया, कॉमन इमीटर। तो ट्रांजिस्टर शंट वोल्टेज रेगुलेटर कौन से कॉन्फ़िगरेशन में यूज होता है, कॉमन इमीटर, क्योंकि इमीटर आपका देखो यहाँ पे कॉमन है, ग्राउंड है, बराबर है, और यहाँ पे आउटपुट कहाँ पे ले रहे हो, कलेक्टर में, इनपुट कहाँ पे अप्लाई कर रहे हो, बेस पे। तो ये सीधा सीधा आपको तो कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन नजर आ रहा है। ओके, यहाँ पे इसका ऑपरेशन क्या दिया हुआ है, द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस सीरीज रजिस्टर RS डिपेंड अपॉन द करंट सप्लाई टू लोड RL। तो जो वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस होगा यहाँ पे सीरीज रजिस्टर RS पे पास, वो किसके हिसाब से डिपेंड करेगा, द करंट विच इज सप्लाइंग थ्रू द लोड करंट RL। तो ये जो सीरीज रजिस्टर के पास जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो किसके हिसाब से डिपेंड करेगा, जो अमाउंट में आपका करंट प्रोवाइड कर रहे हैं, आप किधर पे प्रोवाइड कर रहे हैं, लोड रेजिस्टेंस के पास। द आउटपुट वोल्टेज इज इक्वल टू द सम ऑफ जेनर वोल्टेज एंड बेस टू मीटर वोल्टेज। तो ये सर्किट में ट्रांजिस्टर शंट वोल्टेज रेगुलेटर सर्किट में अब देखो आपका आउटपुट एक्सप्रेशन क्या है, वी आउट इज इक्वल टू क्या है, VZ प्लस VBE। वी आउट इज इक्वल टू क्या है, VZ द वोल्टेज अक्रॉस दिस जेनर डायोड VZ प्लस VBE। जाहिर सी बात है, अब आपको यहाँ पे जो पैरेलल में जो चीज है, जो वोल्टेज ड्रॉप इधर पे खाएगा वही पैरेलल अक्रॉस में होगा, वी आउट होगा। तो अब वी आउट का क्या हो रहा है, यहाँ पे वी आउट का एक्सप्रेशन में आपको क्या चीज नजर आ रहा है, द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस दिस जेनर डायोड VZ, और यहाँ पे देखो प्लस माइनस है VBE। तो अगर आप ध्यान से भी देखोगे, ऊपर से आप किरचॉफ वोल्टेज लॉ अप्लाई करोगे तो ये प्लस माइनस यानी प्लस VZ, और ये प्लस माइनस यानी प्लस VBE। तो यहाँ पे आउटपुट वोल्टेज का जो एक्सप्रेशन है वो क्या मिल रहा है आपको, VZ प्लस VBE। और वहां पे आपको क्या मिला था, ट्रांजिस्टर सीरीज में क्या मिला था, VZ माइनस VBE मिला था। यहाँ पे एक्सप्रेशन क्या मिल रहा है, VZ प्लस VBE। तो इफ द लोड रेजिस्टेंस डिक्रीजेस, अगर लोड रेजिस्टेंस डिक्रीज होता है, द करंट थ्रू बेस ऑफ द ट्रांजिस्टर डिक्रीजेस। तो अगर लोड रेजिस्टेंस डिक्रीज होगा तो यहाँ पे सर्किट में क्या होगा, करंट थ्रू बेस ऑफ ट्रांजिस्टर क्या होगा, डिक्रीज होगा। एज अ रिजल्ट लेस कलेक्टर करंट इज सेंटेड। तो लेस कलेक्टर करंट क्या होगा, फ्लो होगा। देयरफॉर द लोड करंट बिकम्स लार्जर, लोड करंट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, देयर बाय मेंटेनिंग द रेगुलेटेड वोल्टेज अक्रॉस द लोड। तो यहाँ पे आपको एक सिनेरियो यहाँ पे इस तरीके से समझाया गया है कि अगर कोई भी फैक्टर की वजह से, कोई भी रीजन की वजह से लोड रेजिस्टेंस डिक्रीज होगा तो उसका कंपेंसेशन कैसे होगा, लोड रेजिस्टेंस डिक्रीज होगा मतलब आउटपुट का करंट बढ़ेगा। तो करंट थ्रू बेस ऑफ द ट्रांजिस्टर डिक्रीजेस, लोड रेजिस्टेंस का डिक्रीज होना, तो करंट थ्रू दिस ट्रांजिस्टर क्या होगा, ये आपका डिक्रीज होगा, ये डिक्रीज होगा, ये इंक्रीज होगा। क्या बताया इधर पे, ये डिक्रीज होगा आपका, करंट थ्रू द बेस ऑफ द ट्रांजिस्टर डिक्रीज होगा। एज अ रिजल्ट लेस कलेक्टर करंट इज सेंटेड। लेस कलेक्टर करंट क्या होगा आपका, शंट होगा, लेस कलेक्टर करंट फ्लो होगा। thereby the load current becomes larger। तो लोड करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। thereby maintaining the regulated voltage across the load। तो रिवर्स हैपन तो the load resistance increases। तो यहाँ पे एक लोड रेजिस्टेंस का सिनेरियो लेके समझाया है। अगर लोड रेजिस्टेंस डिक्रीज होता है
तो बेस टू इमीटर वोल्टेज में जो आपका करंट सप्लाई हो रहा है वो क्या होगा, कम होगा, तो लेस कलेक्टर करंट मिलेगा, तो आउटपुट का जो करंट है वो ऑब्वियसली क्या होगा, बढ़ जाएगा। इस तरीके से कंपेंसेशन ये सर्किट में होता है। व्हाट आर द ड्रॉबैक ऑफ ट्रांजिस्टर शंट वोल्टेज रेगुलेटर? अ लार्ज पोर्शन ऑफ द टोटल करंट थ्रू आरएस फ्लो थ्रू ट्रांजिस्टर रेदर देन द लोड। तो यहाँ पे लार्ज पोर्शन ऑफ टोटल करंट जो है वो फ्लो होता है कहाँ पे, सीरीज रजिस्टर आरएस के पास, रेदर देन द लोड। तो लोड के पास जो अमाउंट में करंट फ्लो होना चाहिए उससे ज्यादा करंट सप्लाई कहाँ पे पास हो रहा है, कहाँ पे फ्लो हो रहा है, सीरीज रजिस्टर आरएस में फ्लो हो रहा है। तो ये मेन ड्रॉबैक पॉइंट है। देयर इज ऑल्सो कंसिडरेबली पावर लॉस। तो जब ज्यादा करंट फ्लो होगा सीरीज रजिस्टर आरएस से तो जाहिर सी बात है ज्यादा पावर लॉस भी होगा। देयर आर प्रॉब्लम्स ऑफ ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन इन दिस सर्किट। फॉर दिस रीजन अ सीरीज वोल्टेज रेगुलेटर इज प्रीफर्ड ओवर द शंट वोल्टेज रेगुलेटर। तो ये सब रीजन की वजह से ज्यादा पावर लॉस वगैरह होने की वजह से हम लोग कौन सी रेगुलेटर सर्किट को प्रीफर करते हैं, सीरीज रेगुलेटर सर्किट को प्रीफर करते हैं ओवर ट्रांजिस्टर शंट वोल्टेज रेगुलेटर सर्किट। तो ये चैप्टर के 3 रेगुलेटर सर्किट है, एक जेनर डायोड एज वोल्टेज रेगुलेटर और एक आपका ट्रांजिस्टर सीरीज रेगुलेटर और लास्ट आपका ट्रांजिस्टर शंट रेगुलेटर। तो विद दिस आई एम एंडिंग दिस चैप्टर ऑल्सो। तो ये आपका यूनिट नंबर 5 इतने ही कंटेंट का था। ब्लॉक डायग्राम ऑफ पावर सप्लाई, लाइन रेगुलेशन, लोड रेगुलेशन और 3 सर्किट थे आपके रेगुलेटर की, जेनर डायोड एज वोल्टेज रेगुलेटर, ट्रांजिस्टर सीरीज रेगुलेटर एंड ट्रांजिस्टर शंट रेगुलेटर। So that's all for this lecture.